Very good morning. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. I am Head of Department of Electronics and Telecommunication. Today, I will teach you subject data communication, and the topic of our discussion will be serial and parallel communication. So, the contents and learning outcomes of this lecture will be: first, definition of serial communication, definition of parallel communication, key points of serial communication, key points of parallel communication, and comparison between serial and parallel communication. So there are two methods of data transmission between two digital devices. First is serial communication and another one is parallel communication. किन्हीं भी दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच डेटा को कम्युनिकेट करने के दो तरीके होते हैं, एक सीरियल कम्युनिकेशन, एक पैरेलल कम्युनिकेशन. So now come to serial communication. Serial communication. In serial data communication, data bits are sent one after another over a single communication link. जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन में जो डेटा बिट्स हैं, एक के बाद एक सेंड की जाती हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर. In parallel communication, in parallel data communication, multiple data bits are transmitted at the same time over multiple communication link. जबकि पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन में मल्टीपल डेटा बिट्स को एट ए टाइम सेंड किया जाता है और यहाँ पर हम मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक का उपयोग करते हैं. Now key points of serial communication. Serial communication is the most common form of data communication used in digital world. जो आपका सीरियल कम्युनिकेशन है, यह आजकल सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कम्युनिकेशन है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में उपयोग हो रहा है. Serial communication transfer the data one bit at a time, one after another, sequentially over a single communication link. तो जो सीरियल कम्युनिकेशन के की पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि सीरियल कम्युनिकेशन में एक बिट डेटा की एट ए टाइम ट्रांसफर होती है और एक बिट दूसरी बिट ट्रांसफर होने के बाद ही ट्रांसफर होती है. जो डेटा बिट्स हैं सिक्वेंशियली एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ट्रांसफर होता है और एक ही कम्युनिकेशन लिंक का हम उपयोग करते हैं. As compared to the parallel communication, serial communication need only one communication link for data transfer. Hence, in serial communication, the cost for the communication line as well as the space required is reduced. Parallel communication के comparison में जहां पर कि multiple links का उपयोग करते हैं, यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन लिंक का उपयोग करते हैं, जिसका क्या फायदा होता है, एक तो जो कॉस्ट है सीरियल कम्युनिकेशन की वह बहुत कम हो जाती है और जो स्पेस का रिक्वायरमेंट है वह भी काफी कम हो जाता है. इन सीरियल कम्युनिकेशन द डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन बिट एट ए टाइम. जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसमें डेटा बिट सीरियली ट्रांसफर होती है और एक समय में सिर्फ एक ही डेटा बिट ट्रांसमिटेड होती है ओवर अ कॉमन कम्युनिकेशन लिंक और चैनल. एक ही कम्युनिकेशन चैनल और लिंक होता है. इन सीरियल कम्युनिकेशन ओनली अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल और लिंक इज यूज्ड. सो सीरियल कम्युनिकेशन allows sequential data transfer rather than simultaneous data transfer. चूंकि सीरियल कम्युनिकेशन में हम एक ही कम्युनिकेशन चैनल या लिंक का उपयोग करते हैं, तो जो डेटा बिट्स हैं वह एक सीक्वेंस में सीक्वेंशियली और सीरियल वे में ट्रांसमिट होती हैं. जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा बिट्स साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रांसमिटेड होती हैं. Now serial data communication is highly suitable for long distance data transmission because in serial communication only a single wire or link is used. जो आपका सीरियल डेटा कम्युनिकेशन है यह लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत अधिक सुटेबल है. क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ही सिंगल वायर या लिंक का उपयोग करते हैं जिसे कि लंबी दूरी तक बिछाया जा सकता है. Serial communication is reliable data transmission method because in serial communication, next data bit is only sent if previous data bit has already been received. जो आपका serial data communication है, यह एक reliable data transmission का method है, क्योंकि इसमें next bit हम तभी send करते हैं या transmitted करते हैं
जबकि प्रीवियस डेटा बिट ऑलरेडी रिसीवर रिसीव कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन सीरियल कम्युनिकेशन डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड। जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसमें आपकी डेटा की इंटीग्रिटी है वह मेंटेन रहती है। When data is sent or received using serial data transmission, data bits are organized in specific order since data bits can only be sent one after another. चूंकि सीरियल डेटा कम्युनिकेशन में एक दूसरी डेटा बिट्स तभी सेंड की जाती है जब पहली डेटा बिट्स ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुकी हो। तो जो सीक्वेंस है डेटा बिट्स का या जो ऑर्डर है वह डिस्टर्ब नहीं होता है, तो आपकी जो डेटा की इंटीग्रिटी है वह मेंटेन रहती है। Serial communication is cheaper than parallel data communication because in serial communication only a single communication link is used. चूंकि serial communication में हम एक ही communication link का इस्तेमाल करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच, अतः हम कह सकते हैं जो serial communication है यह cheaper है, सस्ता है as compared to parallel communication. Serial data communication can be classified as synchronous serial communication and asynchronous serial communication. Some example of synchronous type serial communication protocols are SPI, I2C, and example of asynchronous serial communication are RS-232, RS-422 and UART. जो आपका सीरियल डेटा कम्युनिकेशन है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन एंड असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन। जो सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल हैं वह कौन कौन से हैं? एसपीआई, I2C, और जो असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वह कौन कौन से हैं? RS-232, RS-422 और UART. Now come to the parallel communication. In parallel communication, multiple data bits are simultaneously transmitted using multiple communication link between sender and receiver. जो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन है उसमें मल्टीपल डेटा बिट्स को हम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ट्रांसमिटेड करते हैं और सेंडर और रिसीवर के बीच मल्टीपल लिंक्स होती हैं। जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में आपने देखा सिर्फ एक ही लिंक है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच मल्टीपल लिंक्स हैं और मल्टीपल डेटा बिट्स को हम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड करते हैं। इन पैरेलल कम्युनिकेशन many links are used between sender and receiver and each bit of data is transmitted separately over all communication link. जो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन है उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच मल्टीपल लिंक्स होती हैं और हर बिट को हम सेपरेटली कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर ट्रांसमिटेड करते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ 8-bit डेटा एट टाइम यूजिंग पैरेलल कम्युनिकेशन टेक्निक इज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि 8-bit डेटा को हमने एट ए टाइम सेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच कितने कम्युनिकेशन लिंक है? देयर आर 8 कम्युनिकेशन लिंक। इन पैरेलल कम्युनिकेशन simultaneous transmission of data is allowed, as we can see that for the transmission of 8-bit data 8 separate communication links are utilized, whereas in serial communication sequentially data transmission is used. जो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन है इसमें आप साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो साइमल्टेनियसली होता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 8-bit डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमने 8 सेपरेट कम्युनिकेशन लिंक्स का उपयोग किया, जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में हम सीक्वेंशियली डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन लिंक का इस्तेमाल करके हम सारे बिट्स को ट्रांसमिटेड करेंगे। The speed of parallel communication is fast as compared to serial communication due to multiple links between sender और receiver. चूंकि सेंडर और रिसीवर के बीच पैरेलल कम्युनिकेशन में मल्टीपल लिंक्स होती हैं, इसलिए जो स्पीड है कम्युनिकेशन की या ट्रांसमिशन की वह पैरेलल कम्युनिकेशन में ज्यादा होती है। द कॉस्ट ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन इज फास्ट एज कंपेयर टू सीरियल कम्युनिकेशन ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। चूंकि सेंडर और रिसीवर के बीच हम मल्टीपल लिंक्स का यूज कर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट है पैरेलल कम्युनिकेशन का वह भी क्या होगा? ज्यादा होगा। Now, parallel communication is not suitable for long distance communication because multiple links required between sender and receiver. चूंकि पैरेलल कम्युनिकेशन में हम मल्टीपल लिंक्स का उपयोग करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच, इसलिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपका पैरेलल कम्युनिकेशन सुटेबल नहीं है।
The example of parallel communication protocol are ISA, ATA, SI, PCI, and IEEE 488. Now the comparison between serial communication and parallel communication. First point, in serial communication, one bit or single bit of data transmitted at a time. जो आपका serial communication है, उसमें single bit of data transmitted किया जाता है at a time. Whereas in parallel communication, n bits of data transferred at a time. जबकि parallel communication में क्या करते हैं हम n bits of data को या multiple bits of data को transmitted करते हैं. Second point, in serial communication, single communication link is required between sender and receiver. जो sender और receiver है उसके बीच सिर्फ हमें एक ही communication link की आवश्यकता है. Whereas in parallel communication, n links or multiple links are required to transfer n bits simultaneously data between sender and receiver. जबकि parallel communication में हमें n bits को भेजने के लिए n links की आवश्यकता होगी, यानी multiple links की आवश्यकता होगी. थर्ड, sequential transfer of data bits. जो आपका serial communication है, इसमें जो ट्रांसफर है डेटा बिट्स का इस सीक्वेंशियली होता है. सीक्वेंशियली मींस एट ए टाइम वन बिट होता है और एक बिट के बाद ही दूसरी बिट ट्रांसफर होती है. जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, साइमल्टेनियसली ट्रांसफर ऑफ डेटा बिट्स. जो आपके डेटा बिट्स हैं ये साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होती है, मींस एक साथ ट्रांसमिटेड होती हैं. फोर्थ, कॉस्ट इज लो ड्यू टू सिंगल लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. जो आपकी कॉस्ट है सीरियल कम्युनिकेशन की यह लो होती है क्योंकि हम सिंगल लिंक का इस्तेमाल करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच. नाउ इन पैरेलल कम्युनिकेशन द कॉस्ट इज हाई ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स यूज्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. जो सेंडर और रिसीवर है इनके बीच मल्टीपल लिंक्स का इस्तेमाल होता है. नाउ इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. जो आपका सीरियल कम्युनिकेशन है यह लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल है. Whereas parallel communication is suitable for short distance communication. जो आपका parallel communication है यह short distance communication के लिए suitable है. 6 point, crosstalk is not present in serial communication due to single communication link between sender and receiver. चूंकि sender और receiver के बीच एक single communication link है इसलिए crosstalk होने की possibility serial communication में नहीं है. Parallel communication, crosstalk present due to multiple links between sender and receiver. जो आपका parallel communication है इसमें crosstalk की possibility ज्यादा है क्योंकि sender और receiver के बीच multiple links होती हैं. Point 7, in serial communication all data bits are transmitted over a single communication link, so interference is possible and hence in order to avoid interference प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बिट्स आर रिक्वायर्ड. जो आपका सीरियल कम्युनिकेशन है चूंकि सारी डेटा बिट्स एक ही सिंगल कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर सेंड की जाती हैं इसलिए इंटरफेरेंस पॉसिबल है और हमें इंटरफेरेंस को हटाने के लिए जो आपकी बिट्स हैं बिट्स के बीच एक प्रॉपर स्पेसिंग की आवश्यकता है. इन पैरेलल कम्युनिकेशन ऑल डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक, सो इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन में सारे डेटा बिट्स हम अलग अलग डिफरेंट लिंक्स के ऊपर ट्रांसमिटेड करते हैं इसलिए इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है. नाउ 8th पॉइंट, सिस्टम अपग्रेडेशन इज वेरी इजी इन सीरियल कम्युनिकेशन. अगर सीरियल कम्युनिकेशन में आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह प्रोसेस बहुत आसान होती है. Whereas in parallel communication, system upgradation is difficult in parallel communication. जबकि parallel communication में system upgradation tough है. 9th point, serial communication support full duplex mode. जो आपका serial communication है यह full duplex mode को support करता है, means at a time two-way communication possible है. Whereas in parallel communication support half duplex mode. जबकि parallel communication हाफ डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करता है, मींस एट ए टाइम आप एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं.
10th point, serial communication is more efficient for high frequency operations. High frequency operations के लिए ज्यादा efficient है. Parallel communication is less efficient for high frequency operation. High frequency operation के लिए less efficient है. 11th नंबर का पॉइंट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो. आपके सीरियल कम्युनिकेशन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट लो होती है, whereas in parallel communication installation cost is high. 12th पॉइंट, हायर बैंडविड्थ. जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसकी बैंडविड्थ हाई होगी और पैरेलल कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ लो होगी. नाउ कम टू द असाइनमेंट. सो आपको क्या करना है, एक A4 साइज के पेपर पर ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर लिखना है. कंपेयर सीरियल एंड पैरेलल मेथड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और मुझे मेरे ईमेल एड्रेस vishnunarayan.saxena@gmail.com पर ईमेल करना है. आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज और असाइनमेंट के क्वेश्चंस भेज सकते हैं. चलिए, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.